Hello everyone, myself Lalit Suthar. I am your biology faculty from Education One. Today we get learn about the cell. We all know about the cell. In the previous class we heard about the cell. Cell is the what? The basic unit of the life. Cell is what? Means all organism consist from the cell and their products. So simply, if we get talking about the building is consist from the what? Blocks. Same like cell are the building blocks of our body. Means our body is consist from the cell. In this diagram there are different type of the organism. This all organism consists from the cell and their products. Same like the plants, bacteria, fungus, insects, uh, mollusks, and other plants, birds, etc. So all organism consists from the cell or their product. Simply, there are few points which related with the cell theory. So, what is the cell theory? It means that cell is the basic unit of the life. All organism consists from the cell and the product of the cell. And what about new cells? So new cells arise from the pre-existing cells. So this all 3 points include under the category of cell theory. And the cell theory proposed by or given by Sheldon and Swan. So the question is what? We think who is first discovered cell? Means the person who discovered the cell. So the name of the person is what? Robert Hooke. Name of the person is what? Robert Hooke. Robert Hooke discovered first plant cell. Okay. So cell theory given by the Sheldon and Swan and cell discovered by Robert Hooke. Here in this diagram there are different type of the animal mentioned over here like bear, ostrich, whale, turtles, frog, etc. And so all living organism consists from the cell. Simply, the organism have different shapes, but they all consist from the cell. Same like different buildings, but they all building consist from same blocks. So same like all organism consist from the cell. Here, there are various type of the cell. Here is stem cells. This is the basic cells. Stem cells is the basic cell. They act like a block. Basic cells form different kind of the building. Same like stem cells form different type of the cells. Stem cells form sex cells, things like muscle cells, as well fat cells, bone cells, our blood cells, nerve cells, and epithelial cells. So the stem cells have ability to form different type of the cells. You think which kind of the cells present on the earth, or what is the basic type of the cell? I think according to this diagram, you think this is the muscle cells, fat cells, bone cells, blood cells, etc. cells. All are the different cells? No, this all cells under the same category. This is considered as what? Eukaryotic cell. Simply cell divided into the basic two part. Which one? So let's start. यहाँ पर देखिए आप, अगर हम सेल्स को डिवाइड करेंगे तो सेल को बेसिकली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, prokaryotic cells and the eukaryotic cells. Pro means what? Pro means primitive. Pro means primitive. Primitive means what? ऐसी सेल जो फर्स्ट अर्थ के ऊपर आई थी या सबसे पहले अर्थ आई थी, फर्स्ट अराइव ऑन अर्थ, या कहेंगे ऐसी सेल जो अर्थ के ऊपर सबसे पहले बनी थी. और वो सेल सारे प्रिमिटिव सेल्स होती है. दे ऑल आर small and the unicellular organism. So prokaryotic cells include bacteria, small cell, mycoplasma, and blue-green algae. We say the cyanobacteria. This is also known as blue-green algae. Blue-green algae. तो ये हमारे पास में डिफरेंट प्रोकैरियोटिक सेल्स है.
प्रोकैरियोटिक सेल्स की खास बात क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक से अलग क्यों है, तो हम ये कह सकते हैं कि इन सेल्स के अंदर वेल डिफाइंड, जैसे इस सेल में आप देखिए यूकैरियोटिक सेल्स में सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट ओवर हियर, बट इन दिस सेल this type of the cell organelle is absent. तो मेन थिंग इज व्हाट, सेल ऑर्गेनेलीज है वो एब्सेंट होते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट, इसीलिए ये प्रिमिटिव या बेसिक सेल्स कहलाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल, तो देखिए प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव था, सिंपल सी बात है, यूकैरियोटिक एडवांस या डेवलप सेल्स कहलाएगी। तो ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल हमने अमीबा, amoeba is what unicellular cell but still it's a eukaryotic cell, while multicellular जैसे प्लांट्स, जितने भी अर्थ के ऊपर एग्जिस्टिंग प्लांट्स है जो आपको दिखते हैं, they all are known as what, multicellular eukaryotic cell। तो प्लांट, लार्ज एनिमल, फंगस, फंगस जो एडिबल फंगस आप जानते होंगे, एगरिकस, ग्रोइंग फंगस जो हमारे क्लोथ्स के ऊपर, फूड के ऊपर ग्रो करते हैं, सारे फंगस, so they all include under the category of eukaryotic cells, and the eukaryotic cells is known as what, developed cells or advanced cells। इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, advanced cell, cell also known as advanced cell। So here after the eukaryotic cell there are two major differentiation in the eukaryotic cells। अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर भी जो एडवांस सेल्स हैं, इसमें दो मेजर डिफरेंस है, ये यूनिसेलुलर है और मल्टीसेलुलर भी है। इस ऑल कैटेगरी अंडर दी मल्टी सेलुलर। एंड यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या होगा हमारे पास में, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, इस ऑल एग्जांपल अंडर द कैटेगरी ऑफ यूनिसेलुलर। अब हम सोचते होंगे क्या सेल का शेप एक जैसा होता है, देखिए इस डायग्राम में तो आपको यूकैरियोटिक सेल्स भी उतना ही बड़ा दिख रहा है और प्रोकैरियोटिक सेल्स भी उतना ही बड़ा दिख रहा है, डायग्राम में तो कोई डिफरेंस नजर ही नहीं आ रहा। यहाँ ये भी एक जैसा, ये भी एक जैसा, ऑलमोस्ट दोनों का साइज हमको सेम नजर आ रहा है। तो क्या एक्चुअल और रियल में ऐसा होता है कि सेल्स हैव सिमिलर साइज, तो इसको हम यहाँ समझते हैं शेप ऑफ द सेल और दिस इज द साइज ऑफ द सेल। साइज ऑफ द सेल्स के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम एटम लेवल से, दिस इज द स्केल, ये स्केल रिएक्टर्स है और इसके ऊपर हमने इनको कंपेयर किया है कि ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप होता है और क्या क्या एग्जैक्टली उसका साइज है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एटम होते हैं, सिंपल एटम लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो एटम मिलके क्या बनाते हैं अपने के पास में, स्मॉल मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल मिलके बनाते हैं लार्ज मॉलिक्यूल, एंड द लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो और कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे लाइक प्रोटीन्स बने, लिपिड्स बने, कार्बोहाइड्रेट बने, एक्सेट्रा। सो ऑल लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म कॉम्प्लेक्सिव ऑर्गेनिज्म, जैसे कि वायरसेस बन गए, यहाँ पर ये वायरस है, वायरस बन गए। वायरस से भी बड़े होते हैं सेल के ऑर्गेनेलीज, सेल के ऑर्गेनेलीज मिलके क्या बनाएंगे, सेल बनाएंगे। तो यहाँ पर सेल है आपका, और ये देखिए सभी क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं, मतलब ये इतनी जो कैटेगरी है ये हम नेकेड आई से कभी नहीं देख सकते। सो ऑल अंडर द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कैटेगरीज के अंदर है। तो मोस्ट प्लांट एंड एनिमल सेल्स दे आर वेरी स्मॉल इन द साइज, इनका अगर एवरेज साइज की बात करें तो कितना है, देखिए स्केल्स के ऊपर लिखा है, मतलब 10 माइक्रोन से 100 माइक्रोन के बीच में होता है, जो कि अपने आप में बहुत ही स्मॉल साइज है। अब यही सेल अगर यूनाइटेड हो जाएगी तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टिश्यूज बनाएगी, जिसको अपन थोड़ा इजीली लाइट माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सिंगल सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाएगी, टिश्यूज मिलकर क्या बनाएगा, ऑर्गन बनाता है, और ऑर्गन मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम।
तो यहाँ पर किस तरीके से सेल्स का डेवलपमेंट हुआ, एक स्मॉल एटम से एक सेल का डेवलपमेंट। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंट सेल्स ऑर्गेनेलीज भी फॉर्म हो गए एंड सेल्स भी फॉर्म हो गया। कई सारे ऑर्गेनेलीज थे वो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये मिलके क्या बन गया, ऑर्गेनिजम्स बन गया। जैसे कि हमिंग बर्ड स्मॉल ऑर्गेनिज्म बन गए। अब स्मॉल ऑर्गेनिज्म अपनी जगह है, लार्ज ऑर्गेनिज्म अपनी जगह है। इन सब में एक बात जो कॉमन है वो ये है कि सभी ऑर्गेनिज्म, भले वो अब व्हेल हो, ह्यूमन हो, ट्री हो या बर्ड्स हो, ऑल ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट फ्रॉम दी सेल। फिर क्वेश्चन वही है कि सेल हमें क्यों नहीं दिखता, तो यहाँ पर आपका आंसर है क्योंकि सेल्स ऑफ साइज में बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है, इसलिए उसको देखने के लिए आइदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी भी यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन मिलता है। स्मॉलेस्ट सेल, अर्थ के ऊपर सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स कौन सा है, माइकोप्लाज्मा। ये कौन सा एक प्रोकैरियोटिक सेल है तो सबसे स्मॉलेस्ट है, इसका साइज होता है 0.3 माइक्रोन के आसपास। लार्ज सेल्स में आता है आपके ऑस्ट्रिच एग, सिंगल सेल काफी बड़ी होगी, एंड लॉन्ग सेल, लार्ज सेल एंड लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल्स है ना, नर्व सेल्स न्यूरॉन है तकरीबन 1 to 2 मीटर तक लॉन्ग होते हैं हमारी बॉडी में अंदर। तो ये हमारे पास में डिफरेंट साइज एंड द कैटेगरी ऑफ दी सेल्स है। अगर हम हायर कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो हायर कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल है उसकी एग्जैक्टली क्या पोजीशन है और वो कैसे दिखेगी। तो हायर कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दो है हमारे पास में, मेनली प्लांट एंड एनिमल। तो इसको अपन देखते हैं पहले प्लांट्स को। अगर हम अपनी सराउंडिंग को देखेंगे तो हमारी सराउंडिंग्स में बहुत सारे प्लांट हैं। द ऑल प्लांट कंसिस्ट फ्रॉम दी सेल, सभी प्लांट सेल से बने होंगे। तो हियर इज एन एग्जांपल ऑफ द प्लांट। एक प्लांट है, इसमें बहुत सारी छोटी 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 इसके लीव्स के अंदर, इसके स्टेम्स के अंदर, इसके रूट के अंदर सेल है। अगर एक प्लांट सेल्स को हाई रिजोल्यूशन पे फोकस करें तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखिए प्लांट सेल्स दिख रहा है जिसके अंदर हमको डिफरेंट ऑर्गेनेलीज दिख रहे हैं। यहाँ पर हमको न्यूक्लियस नजर आ रहा है, हमको यहाँ पर गोल्गी एपरेटस नजर आ रहा है, हमको यहाँ पर गोल्गी एपरेटस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के टाइप है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमको नजर आ रही है। यहाँ पर हमको राइबोसोम नजर आ रहा है स्मॉल। प्लांट्स के अंदर सेंट्रल वैक्यूल्स होता है वो हमको नजर आ रहा है। हियर माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स बोथ अंडर द कैटेगरी ऑफ साइटोस्केलेटन। और ये प्लांट सेल्स की खास बात जिसको हम बोलते हैं इसका प्लास्टिक्स और इसे द क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहा है यहाँ पर। ये प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होते हैं, मैं इनके अभी फंक्शंस को बताऊंगा, पहले इनके ऑर्गेनेलीज को बता देते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये पेरोक्सिसोम्स है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हमको नजर आ रहे हैं। देखिए लार्ज न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट है, उसके चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड वैक्यूल, इधर गोल्गी बॉडी एंड प्लास्टिड्स, एंड हियर माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनेलीज है। सेम जो ऑर्गेनेलीज प्लांट में प्रेजेंट है, कुछ कॉमन ऑर्गेनेलीज है वो एनिमल सेल में भी रहते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एक्सेट्रा एनिमल सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होंगे। तो इनका क्या बेसिक फंक्शन हो सकता है, तो इनके फंक्शंस को हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पर फंक्शंस को थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। न्यूक्लियस इज व्हाट, ब्रेन ऑफ द सेल, is control all metabolic activity of the cell. Endoplasmic reticulum, rough and the smooth, both related. Rough related with the protein synthesis and smooth endoplasmic reticulum related with the lipid synthesis. Ribosome प्रोटीन फॉर्मेशन से रिलेटेड है। वैक्यूल फूड स्टोरेज के साथ साथ में अदर मेटाबॉलिक कंपोजिशंस और वाटर को स्टोर करता है। साइटोस्केलेटन सेल को मजबूती देता है। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा।
प्लाज्मोडेस्माटा पोर्स होते हैं किसके अंदर, सेल वॉल के अंदर, जो दो एडजेसेंट सेल्स को, यहाँ पर पास वाले सेल्स को दूसरे सेल्स के साथ में कनेक्ट करते हैं। जैसे दो रूम के बीच में एक गेट कैसे बना होता है, सेम लाइक ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो दो सेल्स को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया स्मॉलेस्ट है, यहाँ पर नोन एज व्हाट, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्या करती है, सेल्स के लिए एनर्जी करेंसी को जनरेट करती है। पेरोक्सिसोम्स स्मॉल बॉडीज होते हैं और इनका फंक्शन होता है फोटो रेस्पिरेशन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिपिड और प्रोटीन की बनी लेयर होती है जो सेल का एक बेस पार्ट है। विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल पॉसिबल ही नहीं है। तो लिपिड और प्रोटीन्स का बना हुआ आउटर मोस्ट कवर लेयर है। सेल वॉल इज द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स के अंदर क्या होते हैं, बोन्स नहीं होती, इसलिए वो सेल वॉल की वजह से ही इरेक्टाइल्स होते हैं। तो प्लांट सेल्स के अंदर जो सेल वॉल है वो उनका मेजर पार्ट होता है और इसी की वजह से वो मजबूत, स्ट्रॉन्ग और डिफरेंशिएटेड। ठीक, सेम लाइक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन दी animal cell. This is an small cute animal over here. So all animal consists from the this kind of the cell. This is known as what, animal cell. Animal cells also have similar organelles like plant cell, same like nucleus, plasma membrane, ribosomes, Golgi body. But the few organelles little bit different from the animal cell, plant cells. This is the microvilli is present, and here especially centrosome present. तो इनको हम कैसे करेंगे, हम प्लांट सेल्स को एनिमल सेल्स के साथ में डिफरेंशिएट कर देंगे, जिससे हमको पता चल जाएगा कि प्लांट सेल्स में क्या अलग है और एनिमल सेल्स में क्या अलग है। साइटोस्केलेटन्स है, पेरोक्सिसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स है। तो डिफरेंट ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर आपने आज बेस सीखा सेल्स का कि सेल किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से एक बॉल को बनाने के लिए। सपोज दैट अगर हमको एक बॉल को बनाना है तो बेसिक मटेरियल हम क्या यूज करते हैं बॉल को बनाने के लिए, ब्रिक्स यूज करते हैं। तरीके से ब्रिक्स मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक वॉल फॉर्मेशन होगा। सेम लाइक यही ब्रिक्स है हमारे सेल। बहुत सारे जब मल्टीपल सेल्स यूनाइटेड होते हैं तो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ये वॉल है, ये ब्रिक्स आपको दिख रही है। अगर इसी को हम सेल मान लें तो दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज टिश्यू, और ये टिश्यू से बनता है ऑर्गेनिज्म, और ये एक बेस सेल है हमारे पास में। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल एंड सेम एज the functions of the different organelles in the cell. If you like this video, please subscribe our channel Education World and hit the subscriptions button and like, share and comments on our video.